metabolism, injuries, stretching muscles, environment, and active and motionless lifestyle. These are the factors determine the physical fitness. Okay, these all are factors determine the flexibility. So firstly we see here the age and sex. So it can be disputed, it can be indisputed, sorry, here is the another word. Okay, it can be indisputably said that the increase in age leads to decline in flexibility. Okay, so age and sex में क्या है, जेंडर सेंसिटिविटी मीन्स एज एंड सेक्स में हम देखेंगे कि एज कम्पेयर टू बॉयज़ गर्ल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़. ओके, सो ऑल्दो बॉडीज फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी मेंशन्ड with the help of training or practice, but the decline in flexibility is natural with age. Even if one practices, sex is also a determinant of flexibility. Women have more flexibility in a comparison to men because muscle tissues जो है as compared to men soft होते हैं, उस वजह से उनमें ज़्यादा flexibility होती है. Okay, so then physical activities, it is depend on also physical activities, that is muscle stretching है, then bending है, on then power strength, इसके ऊपर भी depend होती है flexibility. So physical activities involves more flexibility in a person's body. There are contraction and spread in the muscles by such activities. So as a result there is improvement in flexibility, hence a stretching of muscles lead to improvement in a flexibility. So physical activity means we are take a training for the flexibility, so that time by the training we improve our flexibility here. Okay, so day by day it increases because हमारे मसल्स को मसाज मिलता है एंड देन प्रॉपर वे के साथ वो बेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं. देन जो भी स्टिफनेस मसल्स में है बाय द ट्रेनिंग वो निकल जाता है. देन सेकेंड थिंग इज इंजुरीज. वाई इंजुरीज डिटरमाइन द फ्लेक्सिबिलिटी. सो ड्यू टू इंजुरीज कनेक्टिव टिश्यूज एंड मसल्स में accumulate फैट्स और डेवलप फाइब्रोसिस. So as a result, the movement of the affected area remains negligible. So आपको अगर हाथ पे इंजुरी है या फिर लेग्स पे इंजुरी है, आपको लेग्स को मोड़ना है, या जिस दिन आपको चोट लगती है उस दिन ऐसे लगता है कि वो स्किन ऐसे ज़्यादा फूल गई है, तो उसकी जगह पे फाइब्रोसिस जो है वो फॉर्म हो जाता है. उस वजह से आपके जो मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. So as a result, the movement of the affected area remains negligible. This is also lead to decline in a flexibility. Then muscle strength. Muscle strength अगर हम देखा जाए, so what is the muscle strength? If the muscle strength is below the minimum required level, it affects the effective completion of high range activities. This happens as the movement does not reach its maximum angle. So training can help improves muscle strength also. Then muscle strength है like a body builder, like a weight lifter, muscle strength है तो वो flexibility के साथ minimum weight maximum weight वो उठा सकते हैं. Then structure of joint. Structure of joint also determine the flexibility. So a body has a several kind of joint. So each joint has a unique structure. So this structure enable to movement of the joint. The agility and the capacity of its maximum range determine the motion of the joint. So for example, the shoulder joint, ball and socket creates more movements than the elbow or knee joint. So hinge joint. Hence, the flexibility of a body part also depend on the structure of the joint. So structure of joints means
कि देर इज द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज देयर, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट. सो एज पर द नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट हमारा शोल्डर जॉइंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स कर सकता है, सरकमडक्शन में घूम सकता है, एडक्शन अबडक्शन कर सकता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकता है. ओके तो ये जो जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट, उसे क्या बोले, बॉल जो होता है उसके अंदर, उसके थ्रू ही वो पूरे जो मूवमेंट्स है वो कर सकता है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ. ओके तो ये उसके ऊपर डिपेंड है कि उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी, डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. ओके सो दीज ऑल आर फैक्टर्स डिटरमाइन द flexibility. These all are physiological factors which is determine the flexibility. Now we see the next part, that is effect of exercises on cardiovascular system. Effect of exercises on cardiovascular system. Okay, so here is our cardiovascular system. So here is the heart, arteries, okay, veins. So here we see, so right ventricular arteries, ventricle, left ventricle is here, okay. Then here is the part of hearts. Then here is aorta, superior vena cava we see here. Okay, pulmonary veins. Okay, these are the pulmonary veins. Then we see here that inferior vena cava is then left atrium, right atrium, then pulmonary veins also here, the pulmonary arteries also here. So this is our cardiovascular system. In this system our blood purified and transferred to the body. So what is the heart functioning? So first of all we see here the circulatory system is directly linked to the blood flow. The three main components of the circulatory system are as follow, that is heart, blood vessels and blood. Okay, ये जो blood vessels है वो heart और इसके अंदर जो ब्लड है, ये तीनों जो सिस्टम्स है सर्कुलरी सिस्टम्स के तीनों मेन कंपोनेंट्स है. ओके सो व्हाट इज द हार्ट फंक्शन? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्सपीरियंसेस मेनी चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज. सो इन दिस सिस्टम ड्यूरिंग एक्सरसाइज बहुत सारे चेंजेस होते हैं. ओके सो व्हेन अ प्लेयर एक्सरसाइजेज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वर्क्स मोर बिकॉज द muscle needs to supply more oxygen and the lungs transmit more oxygen to blood in order to purify it. So therefore the effect of the physical exercise on cardiovascular system are as follow. Heart works like a pump. Pump पता है आपको, नॉर्मली आपको पता है कि हमें आपका बीपी apparatus होगा, डॉक्टर के पास जो बीपी apparatus होता है जिससे एक बॉल होता है, वो बॉल को पंप करते हैं. तो बीपी apparatus वो हवा से हवा जो है वो उस बैग में भर जाती है जो हमारे हाथ के ऊपर लगाया हुआ होता है. तो वैसे ही जो बॉल है जिसको हम पंप करते हैं, दैट इज़ द हार्ट. ओके सपोज दिस इज़ द हार्ट वैसे ही होता है, उसे पंप करना पड़ता है. मीन्स वो एक्सपैंड होता है तो ब्लड उसके अंदर आता है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्यूरिफाई किया हुआ ब्लड बॉडी में जाता है. सपोज इससे ब्लड अंदर आता है, ये जो ब्लू वेन्स है उससे ब्लड अंदर आता है, प्यूरिफाई होता है, रेड होके यहाँ से निकल जाता है. ओके द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वर्क्स मोर बिकॉज द मसल्स नीड टू सप्लाई more oxygen and the lungs transmit more oxygen to blood in order to purify it. So therefore the effect of the physical exercise on cardiovascular system are as follow. जैसे ही आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हो, जैसे ही आप फास्ट वॉकिंग स्टार्ट कर देते हो, तो ये रेट जो है हार्ट रेट आपके बढ़ेंगे, आप उसका पंपिंग मैनर बढ़ेगा, बहुत फास्टली पंप करना स्टार्ट हो जाएगा. So heart works like a pump and send blood to the various part of the body through blood vessels.
So blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. Here is the arteries, veins and capillaries. These all are arteries, veins and capillaries. So are spread over the whole body. Vein carry oxygen depleted blood, oxygen depleted blood to the heart. The heart further sends this blood is to the lungs for purification. So vein carry oxygen depleted blood to the heart. So heart से veins क्या करती है, ये जो प्यूरिफाई हुआ जो ब्लड है वो ले लेती है. उसके बाद द हार्ट फर्दर सेंड दिस ब्लड टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन. ये ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ प्यूरिफिकेशन के लिए भेजती है. देन लंग्स ऑक्सीजनेटेड द ब्लड एंड रिपीट द अबोव प्रोसेस. तो वो ब्लड लंग्स में जाके जो भी हम इनहेल एक्सेल करके ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं उसके थ्रू वो ब्लड साफ होता है और वो फिर से रिटर्न चला जाता है बॉडी में. तो ये जो रिटर्न प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, दिस इज़ अवर सर्कुलेटरी सिस्टम. सो इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेस, इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेस कैसे होता है, इंक्रीज इन हार्ट बीट. फर्स्टली वी फील दैट कि हमारे हार्ट रेट बढ़ रहे हैं. द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट. अ कॉमन मैन्स हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट. सो कॉमनली हमारा जो हार्ट रेट है वो 72 बीट्स पर मिनट होना चाहिए. पर मिनट में 72 होना चाहिए. ओके. देन इमीडिएट इफेक्ट्स क्या है, अगर आप एक्सरसाइज करने लगते हो आपका 72 बीट है बिफोर एक्सरसाइज, बट इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद. स्पोर्ट्स पर्सन इंडल्ज इन स्पोर्ट्स, हिज हार्ट रेट इंक्रीजेस पर मिनट उसके हार्ट रेट इंक्रीजेस होते हैं. सो हार्ट रेट राइजेस ड्यू टू स्विफ्टनेस, रिपीटेशन, स्ट्रेन एंड ड्यूरेशन ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी. सो ड्यूरिंग टफ फिजिकल एक्टिविटीज द हार्ट रेट राइजेस 200 बीट्स पर मिनट. ओके. लास्ट टाइम हम लोगों ने आपका हार्ट रेट लिया था, पल्स आपके बहुत ज़्यादा आते थे. हमने देखा था कि 100 के ऊपर ही सारे बच्चों के पल्स है, 80 के ऊपर है. तो नॉर्मली आपके एज में आप अगर 1 to 2 किलोमीटर चल के आ रहे हो तो आपके हार्ट रेट 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 70 to 80 ही रहने चाहिए. ओके. तो पल्स रेट बहुत ज़्यादा रहते थे. तो ये किस चीज़ का साइन है कि आपका हार्ट डे बाय डे, आपका हार्ट जो है डे बाय डे वीक होते जा रहा है. सो हार्ट की जो कैपेसिटी है, हार्ट का जो मैनर है वो कब डिसाइड होता है, हार्ट का जो फिटनेस है वो कब डिसाइड होता है, जब पर मिनट आपके हार्ट बीट अच्छे से काउंट हो, आपके पल्स अच्छे से काउंट हो. दैट इज़ 70 रेस्ट पोजीशन में एंड अबव 70 to 80 आपके नॉर्मल, आप चल के आ रहे हो, नॉर्मली चल के आ रहे हो 1 to 2 किलोमीटर्स. तो या फिर थोड़ा सा चल रहे हो घर में बिफोर एनी डेली रूटीन्स, आप घर में चल रहे हो, नींद से उठ रहे हो, उसके बाद आपकी हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. बट वो 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. दिस इज़ एबनॉर्मल. देन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो ऑल्सो. इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा एक्सरसाइजेस का, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो. फर्स्ट क्या हुआ, इंक्रीज इन हार्ट बीट बढ़ गए. देन इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो. इमीडिएट इफेक्ट मीन्स हार्ट रेट तो बढ़े, लेकिन एक मिनट के बाद अगर हमने चेक किया, एक मिनट के बाद एक्सरसाइज के वो बढ़ते ही चले गए. देन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता है. व्हेन अ पर्सन इंडल्ज इन एक्टिविटीज द एक्टिव मसल्स नीड्स मोर ऑक्सीजन, सो सप्लाई थ्रू ब्लड. So hence the blood flow is more in active muscles to fulfill the immediate requirement of oxygen. Then increase in cardiac output. The total amount of blood pumped by the ventricles per minute is called a cardiac output. So regular physical exercise increases cardio output. A common man has a cardiac output of 40-20 liters. So whereas a trained
person get 25 to 35 liters per minute. If he or she is a professional athlete, that time their cardiac output is 25 to 35, but we are a normal people, so 40 to 20 liters cardiac output is needed. Then fourth one is increase in a stroke volume. Fourth effect is immediate effect is increase in stroke volume. The quantity of blood sent in by single compressions through left ventricle to the main artery is called a stroke volume. So during exercise, high blood supply needed for the muscles. In order to fulfill this requirement, there is an increase in red blood cells in the body. So as a result, blood can be supplied during heavy workout. So आप जब हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम जो बढ़ाना है, so first of all we see here the what is the stroke volume? The quantity of blood sent in the single compressions through ventricle to the main artery is called a stroke volume. Means हार्ट एक बार पंप होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब ब्लड क्या होता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है. तो जितना ब्लड वन पंप में फेंका जाता है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम. सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हाई ब्लड सप्लाई इज नीडेड फॉर द मसल्स. सो दैट टाइम क्या होता है, बहुत जल्दी हार्ट पंप होने से जो ब्लड सप्लाई होता है मसल्स में वो जल्दी होता है, बिकॉज हार्ट रेट बढ़े हुए रहते हैं. ओके उसकी कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी हार्ट की बढ़ी हुई रहती है. तो और मसल्स को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो इसलिए जैसे ही हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही ब्लड ऊपर की ओर फेंका जाता है. और जितना ब्लड फेंका जाता है उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है. सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हाई ब्लड सप्लाई इज नीडेड फॉर द मसल्स. सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट there is an increase in red blood cells in the body. So as a result, blood can be supplied during heavy workout. हमारे बॉडी में ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कब सप्लाई होता है, ऑक्सीजन हमारे मसल्स को कब सप्लाई होता है, जब हम लोग हेवी वर्कआउट कर रहे होते हैं, हम लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. ओके सो these all are the immediate effect of exercises on cardiovascular system. Okay, hope all are understand this. इसकी और भी स्लाइड्स है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी स्लाइड समझा दूंगी. सो इमीडिएट इफेक्ट्स, इमीडिएट हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, इमीडिएट हमने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज. देन वी सी हियर लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज. वेट फॉर अ मिनट. Okay, here is the effect of exercise on cardiovascular system. Okay, so here we see the effect of exercise on cardiovascular system, decrease in basic heart rate. Okay, this is basic heart rate. Basic means basic 72 है. बेसिक हार्ट रेट डिक्रीजेस नहीं, इंक्रीज होता है. इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ हार्ट रेट. इफिशियंसी बढ़ती है. इंक्रीज द हार्ट साइज एंड वेट. जो नॉर्मल एथलीट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उनका हार्ट रेट, हार्ट साइज एंड वेट बढ़ता है. जैसे बॉडी बिल्डर के जो मसल्स है, बहुत ज़्यादा हेवी वेट उठा के
उनके जो बॉडी के मसल्स जो पंप होके फूलते हैं, वैसे ही इनके जो प्रोफेशनल एथलीट है उनके हार्ट का साइज एंड वेट बढ़ जाता है। सो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज नंबर ऑफ कैपिलरीज, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। ओके, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा पंप करना स्टार्ट कर देता है, तो तब हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और जितनी भी ब्लॉक्स आर्टरीज है वो कम होती है। ब्लॉकेज जो है वेन्स में, वो ब्लॉकेज भी हटना स्टार्ट हो जाते हैं। फास्ट रिकवरी पीरियड, देन डिले फटीग, इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द बॉडी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग विल पावर, इंक्रीज tidal capacity and decrease in rate of respiration, strengthen diaphragm and muscles, delay in second wind, prevention from disease, increase in endurance, passive alveoles become active, increase in size of lungs and chest, increase in vital air capacity. ओके, सो इमीडिएट इफेक्ट कौन से थे? इंक्रीज इन हार्ट बीट, इमीडिएट इफेक्ट, एंड देन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम. Then now we see the long term effect of exercises here. Increase in the size of heart, increasing the size of heart, size and weight of the heart. Regular exercise increases the size and the strength of the muscles of the heart. हार्ट के मसल्स को मसल्स के साइज और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है. इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द वॉल्स ऑफ द हार्ट ऑल्सो. जो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करते हैं जैसे रनिंग, मैराथन, बहुत समय तक रनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, उन लोगों का हार्ट है उसका साइज में बड़ा होता है और वेटेड होता है. सो इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम ऑल्सो. दिस इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज. दोज हु रेगुलरली एक्सरसाइज have better stroke volume than a common man even when they are testing. Then decrease in resting heart rate, decrease in okay Prathamesh. Then decrease in resting heart rate. Resting heart rate decreased होते हैं because जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आपका हार्ट पंप करेगा, उतने हार्ट के मसल्स जो है, वॉल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. तो रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं. हमेशा आप देखना एथलीट के हार्ट रेट आप लोगे तो नॉर्मल पीपल्स के रेस्टिंग टाइम से ज़्यादा एथलीट के जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज़ होते हैं. जैसे 72 मैंने बोला, अगर आप मेरे हार्ट रेट लोगे तो 72 के नीचे जाएंगे. जैसे मैं प्रैक्टिस में हूँ, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरे जो रेस्टिंग टाइम है, रेस्टिंग टाइम में आप मेरे पल्स या फिर मेरे हार्ट रेट लोगे तो मेरे हार्ट रेट 72 के नीचे ही आपको मिलेंगे. 60 तक हमारे हार्ट रेट जाते हैं. जो 4 आवर्स जिन्होंने प्रैक्टिस की है, डेली प्रैक्टिस, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस किए, उन लोगों के हार्ट रेट हमेशा 72 के नीचे ही आते हैं. ओके, सो देन द पर्सन हु रेगुलरली एक्सरसाइजेज हैज़ डिक्रीज्ड हार्ट रेट एज द हार्ट डज नॉट हैव टू बीट मोर दैन इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई ब्लड व्हेन द ब्लड इज रेस्टिंग, when the body is resting. So this happens due to increase in a stroke volume. Then increase in capillaries. कैपिलरी ट्यूब्स है हमारे हार्ट में, कैपिलरी ट्यूब्स वो इंक्रीज हो जाते हैं, कैपिलरी ट्यूब्स. सो रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजेज द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द पर्सन. सो एज अ रिजल्ट इवन द ब्लॉक्ड कैपिलरीज ओपन, द बॉडी स्टार्ट सप्लाइंग ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड सर्कुलेशन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज ऑल्सो हाई एंड द पर्सन बिकम अ हेल्दी. तो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज से क्या होता है, जो भी कैपिलरी ट्यूब्स है आपकी ब्लॉक है, तो आपका रेगुलर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, सारे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट हो रहा है ब्लड. तो जो भी ट्यूब अगर देखा जाए, सपोज
ये ट्यूब हमारी ब्लॉक है, लेकिन यहाँ फोर्सफुली ब्लड फेंका जा रहा है, फोर्सफुली ब्लड सप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें जो भी ब्लॉकेज होगा, जैसे हम बोलते हैं कि पानी की पाइप में कुछ भी अटक के रहता है तो हम लोग नल से उसे जॉइन करते हैं और फोर्सली नल को शुरू कर देते हैं। तो उस पानी के फोर्स से उसमें जो भी अटका हुआ रहता है, जो भी अटकी हुई चीज़ रहती है, वो फोर्सफुली बाहर फेंकी जाती है। वैसे ही सेम विद आवर हार्ट। यहाँ पे अगर आपका कुछ कैपिलरीज में अटके हुआ कुछ भी है, या फिर ब्लॉकेज है, या फिर वहाँ पे स्वेलिंग है, या फिर वहाँ पे कोई भी ऐसे जैसे आर्टरीज तो हमारी सोलन रहती है, ब्लॉकेज रहती है, क्योंकि जंक फूड हम लोग खाते हैं, अननेसेसरी फूड हम लोग खाते हैं, तो वो हमारे कैपिलरीज में, वेंस में जाके चिपक जाते हैं। तो उसको होल करके वो वॉल में, आर्टरीज के, वेंस के वॉल में जाके चिपक जाता है और उसका जो रास्ता है वो छोटा सा बना देता है। अगर फोर्सफुली ब्लड, रोज़ हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और ब्लड हमारे थ्रू आउट द बॉडी ट्रैवल कर रहा है, तो ब्लड जा जाके वहाँ पे जितनी भी चिपकी हुई गंदगी है वो सामने की ओर ढकेली जाएगी और वो ब्लॉकेज भी निकाले जाएंगे। ओके, सो इंक्रीज इन कैपिलरीज, so the body starts supplying blood to all parts of the body due to excessive blood circulation. The supplies of nutrients is also high and the person comes healthy. Control on cholesterol also. Because of cholesterol we have a blockage in our arteries, in our veins. So regular exercising leads to lower level in cholesterol. As a result blood pressure remains normal. कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी वेन्स पूरी ब्लॉक होती है। ओके, फैट्स जमा हो जाता है अंदर की ओर। अगर कोलेस्ट्रॉल कम है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा, हार्ट के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। देन कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन आर्टरीज क्रिएट्स बैरीज इन ब्लड फ्लो ड्यू टू विच द पॉसिबिलिटीज ऑफ हार्ट डिसीज परसिस्ट। रेगुलर एक्सरसाइजेज डिमिनिशिंग द चेंजेस ऑफ सच अ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए अभी से आप लोग वॉकिंग और प्लेइंग स्टार्ट कर दो, तो ये जो हमारे वेन्स हैं वो साफ रहेंगे। सो वन साइडेड इट इज़ प्रूव दैट कि थ्रू द एक्सरसाइज आवर हार्ट बिकम अ हेल्दी। ओके, हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हो कि कंटिन्यूसली आपने पाइप जो है, पाइप के मुंह पे ऐसे दबाया तो फोर्सफुली पानी निकलता है। वैसे ही ब्लड, अगर हम हार्ट को काम करना नहीं सिखाएंगे तो हार्ट ऐसे ही लो होते होते वीक हो जाएगा और लेज़ी हो जाएगा। और इसमें वेंस के वॉल में गंदगी चिपकते उसके होल्स कम हो जाएंगे, उसमें जगह नहीं बचेगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। जैसे हमने देखा लोहे की चीज़ है, हमने ऐसे ही रख दी पानी में तो उसके ऊपर परत जमती है, उसके ऊपर जिसे हम जंग बोलते हैं, उसके ऊपर गंदगी जम जाती है और वो सड़ जाता है। वैसे ही हमारे सिस्टम्स होती है, अगर उन सिस्टम्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना हो, सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रही हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। देन फास्ट रिकवरी रेट मीन्स the speed at which the heart rate returns to normal is called a fast recovery rate. Fast recovery rate means कि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा ही। ओके, आपका हार्ट रेट 200 तक जाएगा इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल प्लेयर। तो आप बहुत ज़्यादा 5 to 6 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, उसके बाद आप 2-3 आवर्स के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, हार्ट रेट आपके बढ़ जाते हैं। तो हार्ट रेट जैसे ही आप रुकते हो वैसे 1 मिनट के बाद, 2 मिनट्स के बाद आपके हार्ट रेट लिए जाएंगे। और अगर उसमें रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं, रैपिडली आपका हार्ट रेट कम हो रहा है, तो समझ लेना आपका हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो द पर्सन हु एक्सरसाइजेस रेगुलरली हैज़ लेज़र रिकवरी रेट, विच मीन्स दैट द हार्ट रेट ऑफ अ ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन comes to normal more easily than a common man. So even the respiratory system becomes normal without taking much time. So this is our
सर्कुलेटरी सिस्टम और इफ़ेक्ट क्या होता है एक्सरसाइजेस का हमने देखा, इमीडिएट इफ़ेक्ट और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देखा एक्सरसाइजेस का। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में क्या होता है, हार्ट हमारा स्ट्रांग होता है, हार्ट के मसल स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि डेली हम लोग उसको कुछ वर्क दे रहे, कुछ काम दे रहे। अगर उसको हम काम नहीं देंगे, वर्क नहीं देंगे, तो वो ऐसे ही पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। तो फिर कौन से डिसीजेस आएंगे, हार्ट डिसीजेस, ब्लड प्रेशर स्टार्ट, फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, सडनली डेथ, हार्ट अटैक, ओके, स्ट्रोक, ये सब प्रॉब्लम हमारे फ्यूचर में खड़े ही है, हम लोग इन्विटेशन दे ही रहे हैं, ओके। सो ऑल ऑफ यू गेट दैट, ऑल ऑफ यू गेट दैट पॉइंट। Monish, after long time you are here बेटा, what happened? मोनीश, आपकी अटेंडेंस बहुत कम है, जून में अटेंडेंस बहुत कम है बेटा आपकी। मोनीश, maybe he is left. Okay, so give me attendance please. Okay, thank you so much all of you. Have a nice day.